She didn't just win matches. Saina Nehwal changed the game for India. From Padma Shri to Padma Bhushan, from the world stage to every Indian heart. Saina Nehwal is a name that inspires millions. She is not just a champion on court, she is a champion of dreams. Okay, ladies and gentlemen, please put your hands together for the Padma Shri winner, Padma Bhushan and Arjuna Award, the world's #1 badminton player, the shining star of our country, the pride of our country, a powerhouse of discipline and glory, Miss Saina Nehwal. अधूरे हैं उनके लिए हमें राहें जिन्हें ना मिले Welcome, Saina. उनके लिए Arey, where did that applause go, ladies and gentlemen? Saina, I promise you, they were equally loud and excited for you to come before this also. They were just so mesmerized when you actually came. So thank you so much for being here. And to have this very enlightened conversation, we have Mr. Mehul Shah and Miss Vipasha Shah joining Saina. Mehul and Vipasha, the floor is yours. Make some noise, ladies and gentlemen. Let's hear it from Saina. That's more like it. Saina, before we start a conversation, just a short story about V2, if you can see the screen. So this was one tweet which I did before, which went viral, and this is used as a meme material for a lot of times. Because CAs are known to be boring, and I proposed her at the age of 21. But the backstory was the only thing common between us from the age 15 to age 21 was badminton. अभी आप you're 15? No, sorry. 15 to 21, sorry. So we have known each other because of badminton. And so the first question from Rohtak to world #1. You have lived a journey, but at the same time, if you look at the founders, startup founders, they always toggle between right product market fit or the right founder market fit. So one message to startup founder you would want to give based on your grind about your journey from Rohtak to world #1 badminton player. Good evening, everyone. I advice about startup. I'm sure you all know better than me. What I can say is actually it's Hisar. I'm from Hisar. So we moved to Hyderabad because my father got promoted. But qualities which I had was playing a lot of sports, not being at home much. Whenever I get chance, go play with the friends. कोई भी स्पोर्ट हो, वेदर इट इज़ क्रिकेट, बैडमिंटन तो देखती थी क्योंकि पापा मम्मी खेलते थे, वही पसंद नहीं था मुझे. लेकिन आई शुड डू स्विमिंग, टेनिस, ये सब खेलती थी. सो बट आई रियलाइज्ड वाज एक तो पैशन होना चाहिए आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं. इफ़ आई डिडंट लाइक स्पोर्ट देन मे बी मैं बैडमिंटन में भी नहीं आती. इफ़ आई वॉज इन टू स्टडीज़ मे बी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उस तरफ होता तो शायद पापा साइंटिस्ट हैं तो मैं भी उसी साइड या डॉक्टर बन जाती या कुछ साइंटिस्ट का कुछ फील्ड ले लेती. बट द इंटरेस्ट वॉज टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड मम्मी इज़ अ बिग स्पोर्ट लवर. तो घर में चलता भी मम्मी का ही है. एंड शी वॉज लाइक अभी साइना ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया है हैदराबाद में क्योंकि वहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे. एंड आई वॉज जस्ट लाइक I was expressing to my parents, I want to do something after school. I want to play for some time. But वहाँ पे language barrier हो गया, बिल्कुल different, north से south में चले गए. And then they were like, ठीक है, badminton is quite popular here. Why don't you try it? And I'm like, वो सब जगह मैंने उसको जिसको छोड़ना चाह रही थी वही आके मुझे मिला. But I didn't know that I started liking the training so much. Basically, the focus was not to be the best in the world. The focus was to give my 100% in each and every training session which I'm doing. The focus was to just prove that what my parents and coaches think about me, that she can be world champion someday. She can be a quality player someday. But what I used to do at that age, I was only 9, I used to laugh at them because mummy is a housewife. And we didn't have any female sports person from badminton before me who actually did maybe really well या कोई all England champion या कोई world champion.
There was nobody like that. And the questions which I used to hear from my seniors was कि हम चाइना को कैसे हराएंगे, हम कोरिया को कैसे हराएंगे, they are so difficult, टूर्नामेंट जीतने के लिए 5-6 राउंड लग जाते हैं, how it will happen, it is not going to happen. So these were the talks which I used to hear actually. But what my mom used to tell me was, तू उन किसी का भी नहीं सुनेगी, तू किसी का भी नहीं सुनेगी, for me you are the champion, I want you to work hard, when the others can do it, why can't you do it? I know it's not easy to be world number 1. मुझे world number 2 से world number 1 बनने के लिए 5 साल लग गए. But I didn't give it up. I tried my level best each time. चाहे मैं नीचे जाऊँ लेकिन मैं वापस come back करूँगी and I will try and achieve it. I have played 500 international matches और कितने हारी होंगी मैं उसमें and been in top 10 for almost 11-12 years. But it is just not because I thought कि sport है, time pass कर लेंगे, ये थोड़े दिन के लिए खेल के ख़त्म कर देंगे. It became my everything. It became my job. Slowly, yeah, initially मम्मी का काफ़ी थप्पड़ मिले मुझे, काफ़ी गालियाँ पड़ी कि अच्छा नहीं खेला, हार रही हूँ, अच्छा नहीं कर रही हूँ. लेकिन once you start winning tournaments and start playing at the highest level, slowly वो आप में कब आ जाता है एक जुनून खेलने का या अच्छा करने का. It's only because someone is totally dedicated to you. एंड थैंकफुली आजकल के ऑब्वियसली पेरेंट्स बहुत दोनों बिजी हैं, दोनों काम करते हैं, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ आजकल के बच्चों के बारे में. बट लकीली विद मी 24/7 माई मॉम वॉज देयर टू रिमाइंड मी, टू कीप टेलिंग मी दैट यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट. कभी कभी डाउट्स आते हैं, कभी कभी हमेशा डाउट्स आते हैं. इवन इफ आई लूज वेरी क्लोज मैचेस टू द बेस्ट प्लेयर्स या बुरी तरह से हार गई, you know, first call will go to my parents and coaches saying that I'm waste, I'm useless, I can't do anything, I can't achieve anything. जितने भी बुरे doubts है, I explain to them. But what they say at that point of time, for us you are the champion. And what I do is immediately I go to gym, I run, I do anything which I feel will make me world number 1 or the best in the world. I do it immediately. And only then I get sleep. Otherwise, mind chalte rahega, non-stop you're thinking about how can you lose matches like that when you're playing at the highest level, when your actually target is to beat the Chinese, Koreans, and you want to be world number 1. It's just not going to happen by training for 6 hours. If I am training for 6 hours, they're training for 8 hours. So I have to be ready for that. If I am eating one gulab jamun or laddu, they're not having anything to get that Olympic medal. They're not even having that ice cream because they know how important that medal is. So only when you get it in yourself कि वो चीज़ कितनी important है और उसके लिए आपको क्या कुछ sacrifice करना है. Every day is important कि आपको injury नहीं होना है. अगर injury हो गया तो is equal to 2 weeks of training gone. So every minute will be stress. I'm sure startup में भी every minute will be stress because there's money involved totally in that. But यहाँ पे तो हम obviously physically अपने आप को kill कर रहे हैं every day. लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपने आप को फिजिकली किल नहीं करूँगी, इफ़ आई डोंट पुश टू द लिमिट्स, दोज प्लेयर्स विल ईजिली बीट मी बिकॉज दे ऑलरेडी एट दैट लेवल. बट जस्ट दैट लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम माई मॉम, फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई कोचेस सेइंग दैट यू हैव दैट स्पेशल क्वालिटी इन यू, just train as much as you can, don't think about tournament, don't think about the results, it's not in your hands. What you can do is just believe in yourself that you can work hard. कितने भी घंटे मुझे ट्रेनिंग करने को बोलते थे मैं कर लेती थी. समटाइम्स द कोचेज यूज्ड टू से कम कर, बट मुझे ज़्यादा करने की इच्छा है तो मैंने किया. आई एम नॉट सेइंग कि आप भी 12 घंटे ही करो, क्या पता आप में इतना टैलेंट है कि आप 7 घंटे में भी चैम्पियन बन जाए. लेकिन मुझे लगता है कि मैं 10-11 घंटे के बाद ही करके कुछ बन सकती हूँ. सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. इफ़ यू आर मेंटली वेरी स्ट्रांग यू कैन पुश योर सेल्फ. इफ़ यू फील नहीं मुझसे नहीं होगा, तो काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे साथ खेलते थे और जो बोल गए कि हमसे नहीं होगा और वो आज इंजीनियर्स के बने बैठे हैं, लेकिन आज बोलते हैं कि शायद हम खेल लेते या कुछ पुश कर लेते. तो इट्स जस्ट दैट कि आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वर्किंग हार्ड, बीइंग पॉजिटिव. थोड़े बहुत नहीं, बहुत दुख आएंगे, खुशी बहुत कम टाइम के लिए मिलती है, लेकिन जितनी भी आपको वो खुशी मिलती है, इट्स actually you can see the whole world is celebrating that with you. When I was standing on the podium Olympics के time पे, I could see पूरे स्टेडियम में इंडियंस थे and they were all so proud that बैडमिंटन में हमें फर्स्ट टाइम ओलंपिक मेडल मिला है. My coaches were crying and imagine that memory is staying with you for forever. And the same thing goes with being the first world number 1 from India in women's category. So these are the special moments जिसके लिए आप इतना हारना भी पसंद करेंगे क्योंकि वो मुझे उधर लेके जा रहा है.
And so many players, when they lose in first rounds, after playing for so many years, they're reporting next day at 6 o'clock. तो मैं क्या excuse बना सकती हूँ after playing so well that I can't be present next day at 6 o'clock? So there is no way I cannot train and think कि मैं best हूँ world में. I have to train, I have to kill myself, I have to be ready for my opponent who is doing better than me. Alertness is very important. Of course, you know कहाँ limit होनी चाहिए, कहाँ body recover होनी चाहिए, कहाँ कितनी sleep होनी चाहिए, what kind of food you need to have. But everything has to be perfect for perfect results. So I just believe that it is. So I think it is all the mental framework. Mental. Yes, the mental makeup is much more important than just the physical work she's put in. So, Sen, I would like to ask that in early days, the infrastructure of India did not give a world-class badminton level or a practice session which now kids can avail to. So, how do you relate it to our first generation founders sitting here, who are still building networks, capital, and having all the legacy advantages? So, how do they relate to it? Initially, for me, of course, I didn't have the best of the coaches. When I started, we had 2 coaches who were good at the national level, but they were not like the highest level coaches. Like when Gopi sir retired in 2003, by then I already played for 5 years, and that is when he became our coach. But I think it's not always about the coach. Coach is definitely there to help you out, and he will give you inputs, and he will give you the right program to make you champion. And but वो सिर्फ मेरे लिए तो नहीं कर रहे हैं ना. There are so many other people who are also following the same program. But only वो few players क्यों करते हैं ऐसा? Only उनमें ही ऐसे की क्या बात होती है कि वो ही चैम्पियन बनते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं. तो मुझे लगता है कि it's all about कि आप कैसे वो चीज़ को लेते हैं, क्योंकि I have seen many players training more harder than me और इतना आउट मार देते हैं वो. एंड मुझे कभी कभी मुझे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए या क्या करना चाहिए कि हम कोर्ट के अंदर डालें. आई एम लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे ये आंसर दो, तुम मुझसे भी फास्ट भागते हो और मेरे से ज़्यादा आउट मार रहे हो और मुझसे कोर्ट पे 21-5 हार जाते हो. ऐसा क्यों होता है? तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मे बी यू नो आपके अंदर देखो, जो चैम्पियन बनता है ना, टैलेंट दिख ही जाता है. सब में तो ऑब्वियसली नहीं होता है, बट कुछ लोगों में तो आपको दिख ही जाता है. तो कोर्ट हो ना हो, सेंटर हो ना हो, कोच हो ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क यू आर देयर. व्हेन यू आर प्लेइंग इन द फाइनल मोमेंट्स, कोच इज़ नॉट ऑन द कोर्ट, प्लेयर इज़ ऑन द कोर्ट. और अगर कोच पीछे से आपको थोड़ा भी बता रहा है कि क्या करना चाहिए, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर इट्स ऑन यू, आपकी गलती है. तो हर एक जगह पे आप अपने आप को ही ब्लेम करें तो बेटर है, क्योंकि फाइनली इट्स यू के मेरे पास शटल कॉक्स नहीं है तो पुरानी शटल से खेलिए. अगर आप उस लेवल पे आ जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा ही, राइट? आपको कैसे नहीं मिल सकता है? व्हेन यू आर इन टॉप 10, यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द कोचेस, बेस्ट ऑफ द फिजियोज, बेस्ट ऑफ द ट्रेनर्स, एवरीथिंग यू आर गेटिंग नाउ डेज. Of course, when I started, we didn't have this quality and all that. लेकिन I always believed I'll be the best. Initially, PT shoes से start किया मैंने for 1-2 years. आज बच्चे जो start करते हैं, they have 10,000 के best Yonex shoes. This is and they think कि कल ही world champion बन जाएंगे. And it's not कल ही world champion बन जाएंगे. I got the Olympic medal. I played almost 7-8 world championship quarter finals to get finally a medal, 9th time. मतलब आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली इंडिया में, एज यू सेइंग, उतनी कमी भी नहीं थी. द प्रॉब्लम वाज कोचिंग हमारे पास उतना हाई लेवल का नहीं था जो अब बन गया इन लास्ट 5-6 years, बिकॉज वी कुड गेट परफॉर्मेंसेज कंसिस्टेंटली फ्रॉम 2006 टिल नाउ. बट इट वॉज जस्ट दैट, आई थिंक मुझे लगता है मेंटली अगर मैंने सोचा नहीं होता, अगर मैंने अपने सीनियर्स की बात सुन ली होती कि हम उनको नहीं हरा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ये क्या वेजिटेरियन है, क्या मारेगी उन लोगों को. I used to cry in front of them, and then my mom used to actually come in between and say कि अगर मेरी बेटी को कुछ बोला तो I will see you all. She used to be so, मतलब वो aggressive nature वाली हैं, and she was very protective of me. And then I used to feel, you know, कि कोई मुझे protect कर रहा है कि मैं अच्छा खेलूँ, better करूँ, और पीछे मेरे coaches खड़े हैं, मेरी मम्मी बैठी है, हल्की सी mistake पे they are ready with their racket के एक पीछे से लगाएंगे, mistake नहीं होनी चाहिए. Strict होना पड़ता है. I am not saying कि it's good.
that you have to be hitting a student or doing that. But अगर आपको उसको उसमें क्वालिटी लग रहा है और उसको हमने थोड़ा अलर्ट किया तो वो बीटिंग्स अगर आपको आज वर्ल्ड चैम्पियन या ओलंपिक चैम्पियन बना रहा है तो वो यू आर दैट वर्ल्ड चैम्पियन राइट. काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं बट आप ही का नाम तो पेपर में है, आप ही को तो लोग सब जानते हैं कि साइना ही कुछ अच्छा कर पाई है. तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच मैटर्स कि अगर आप जिस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए. मेरी ही नीस मुझे बोलती है, अगर मैं उसको बोलती हूँ 2 राउंड भाग के आ, शी विल से नी पेन हो रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो. एंड इफ़ यू आर डूइंग दिस टू योर किड, कैसे होगा. मतलब अगर बच्चे के अंदर ही थोड़ा सा है कि मुझसे नहीं होगा तो वो नहीं होगा. बट अगेन इट इज़ अबाउट योर मेंटालिटी. अगर मैं उस टाइम पे सोचती मैं पीटी शूज से खेल रही हूँ, मेरे को पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पास रैकेट उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है, एक ही शर्ट और शॉर्ट्स के साथ आई हैव प्लेड फॉर 1-2 years क्योंकि उतने पैसे नहीं थे टू प्ले द नेशनल टूर्नामेंट्स और द डोमेस्टिक लेवल टूर्नामेंट्स. लेकिन पापा आज सम हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स क्योंकि उनको लगा ये हार्ड वर्किंग है तो आई विल डू इट. समहाउ अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आपके लिए भगवान रास्ता खोल ही देता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए इसके साथ कि इसको वो पुश मिल जाए. सो लकीली आई गॉट भारत पेट्रोलियम. मेरा जो फर्स्ट जॉब मुझे मिला एट द एज ऑफ 13 मिल गया. ऑब्वियसली उस टाइम पे जॉब नहीं बोलेंगे, इट वाज जस्ट लाइक अ स्पॉन्सरशिप. आई गॉट देम एट द एज ऑफ 18 एंड देन फिर थोड़े बहुत स्पॉन्सरशिप्स जो योनेक्स के हैं वो सब मिल गए ताकि आई कैन गो एंड प्ले सम टूर्नामेंट्स नेशनल. और उसके बाद within no time, when I was only 12, I was in the senior international team. तो luckily मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो बहुत जल्दी हुई मेरे लाइफ में. एंड आई कांट आई कैन फील फॉर अदर्स जो बोलते हैं कि दीदी 12 साल में हम अंडर 13 भी नहीं जीत पा रहे हैं. एंड आई कैन टेल कि क्यों नहीं हो रहा है. एक्चुअली आई कैन टेल, बट वो बोलने से काफ़ी लोग माइट थिंक दैट वाई साइना बीइंग सो हार्श, सो स्ट्रिक्ट, सो दिस. लेकिन मैं उस चीज़ों से गुजरी हूँ. एंड इट्स फाइनली अगर आपको कोचिंग परफेक्ट मिले 2003 के बाद, जैसे गोपी सर ने हमें चेंज करवाया, ही वन द ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप्स एंड ही वाज लाइक ज़्यादा ट्रेनिंग करने से नहीं, क्वालिटी ट्रेनिंग करने से रिजल्ट्स आएंगे. ज़्यादा कुछ ऐसे ही खाने से नहीं, अच्छा खाने से आपको मसल मास मिलेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा. ही चेंज सो मेनी थिंग्स इन आवर प्रोग्राम एंड आवर ईटिंग हैबिट्स दैट फ्रॉम नेशनल लेवल चैम्पियन टू इंटरनेशनल चैम्पियन विद इन जस्ट 1 year मुझे आ गया. आई वन द फर्स्ट फिलीपींस ओपन टाइटल, वी वन द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रॉन्ज मेडल, टीम चैम्पियनशिप में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला. इट जस्ट बिकॉज कि वो लेवल के कोई कोच ने हमें थोड़ा सा चेंज किया, खाने में चेंज किया, ट्रेनिंग में चेंज किया. बट बिकॉज ही थॉट कि उसमें एक क्वालिटी है कि वो इतना हार्डवर्क कर सकती है, दैट्स वाई ही टोल्ड ऑल दिस थिंग्स एंड इट वर्कड सो हार्ड, सो फास्ट. वैसे काफ़ी बच्चे हैं जिनका वर्क नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तो बहाने हैं. अगर आपके अंदर सच्ची में कुछ करने का तो आपको सीमेंट कोर्ट पे भी जाके आप चैम्पियन बन सकते हैं. एंड आई हैव सीन सो मेनी प्लेयर्स विनिंग नेशनल चैम्पियनशिप ऑन सीमेंट कोर्ट, और प्लास्टिक शटल से खेल के भी आप जीत सकते हैं, सिल्वर्स का रैकेट लेके भी आप जीत सकते हैं, जो बिल्कुल ही वो है. बट अगर आपके अंदर इच्छा है कि मुझे बेस्ट बनना है वर्ल्ड का, देन आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग हार्ड, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग. एक बार आपने दिल में बिठा लिया, दिन रात उसके बारे में सोचते हो, रात में सोते वक्त भी उसके बारे में सोचते हो, उसके पास तो ज़रूर ही पहुंच जाओगे. अगर अचीव कर लिया तो ग्रेट है. Thanks. Just a follow-up question on that. We have a lot of people who are trustees in schools, and we have a lot of parents also here. So what according to you is the basic necessity which a school can upgrade, not just for badminton, but as a sports person you feel कि स्कूल में ये फैसिलिटी तो होनी ही चाहिए, मे बी फिजिकली और इवन मेंटली, इफ यू कैन ट्रेन आवर पेरेंट्स टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर फिटनेस और स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, इफ आई वांट टू ट्रेन माय चाइल्ड. मैं आजकल के सभी स्कूल से बहुत एक्चुअली इम्प्रेस्ड हूँ. दे हैव द बेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर स्पोर्ट्स. हैट्स ऑफ के वो हर एक चीज़ ओलंपिक लेवल पे बनाना चाह रहे हैं. बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप स्कूल पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, आपको टाइम मिलेगा किधर आप खेलने के लिए. स्कूल तो स्कूल है पढ़ाई के लिए, एंड देन यू हैव द 30 minutes ऑफ पीटी पीरियड. तो 30 minutes में आप क्या, मैं बोल रही हूँ मैं 12 घंटे की ट्रेनिंग स्टार्ट जब मैं 9 साल की थी मैंने स्टार्ट करी है, और आप उसमें इतने बड़े स्टेडियम्स बना रहे हैं फॉर 30 minutes ऑफ ट्रेनिंग. तो मुझे अच्छा तो लगता है. आई कैन प्रेज इट ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़, यू हैव ऑल द मनी टू मेक इट, यू हैव ऑल द मनी टू गेट बेस्ट ऑफ द कोचेस. बट अगर आपको पता है 8 घंटे का आपका स्कूल है, अगर आपने 8 घंटे की ट्रेनिंग नहीं करी बैडमिंटन में या स्विमिंग में, तो आप चैम्पियन कैसे बनेंगे.
फैसिलिटीज़ हो, दैट्स व्हाट आई सेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैंने माइकल फेल्प्स का भी इंटरव्यू सुना, वो बोला कि मुझे ओलंपिक जो मैंने मेडल जीते 8, मैंने संडे को भी 13 आवर्स ट्रेनिंग किया है पूल में, संडे को भी किया है। अभी आप स्कूल है उसको स्पोर्ट्स से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाँ मैं समझ सकती हूँ आजकल के पेरेंट्स भी या पहले भी उस टाइम पे बोलते थे कितना कर लोगे स्पोर्ट्स में, क्या मिल जाएगा, लेकिन आजकल ही स्पोर्ट्स में अगर आप इतना अच्छा करें तो आई थिंक स्पोर्ट्स वाले को ही सब कुछ मिल रहा है ना, दूसरे को क्या मिल रहा है। आई एम बीइंग लिटिल बिट लाइक मतलब बैडमिंटन साइड में थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन के साइड में हो जा रही हूँ मैं, लेकिन नाम तो जोकोविच फेडरर ही फेमस है ना दुनिया में। बट इट्स जस्ट दैट आई फील कि ऐसे स्कूल्स भी हों और जो 8-8, 9-9 घंटे आपको स्पोर्ट्स की भी ट्रेनिंग दे। वैसे अगर स्कूल्स के पास इतना पैसा है कि दे कैन मेक द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वाई कांट दे गेट द बेस्ट कोचेस और एंड मेक इट लाइक ये स्कूल स्पोर्ट्स स्कूल भी बन सकता है। और हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारी कंट्री इज़ सो टैलेंटेड, वी हैव सच ब्यूटिफुल रिस्ट्स फॉर बैडमिंटन, फॉर टेनिस एंड एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या फ्यूचर में होगा इन स्पोर्ट्स के लिए। एंड आई टोटली एग्री विद द पेरेंट्स एंड टीचर्स, दे माइट फील कि जब तक बच्चा बेस्ट ना कर ले, टॉप 20 में ना पहुंच जाए, आपको वो सब नहीं मिलेगा जो यू फील के शायद क्रिकेट में हो, या हाउ नाइसली दे हैव देयर स्ट्रक्चर के उनको रणजी ट्रॉफी खेलने से ये मिल जाता है, उनको सैलरीज मिल जाते हैं, उनका कुछ रिटायरमेंट के बाद कुछ फ्यूचर है। बट दूसरे स्पोर्ट्स में अभी ये सब कुछ नहीं है। अगर आप दूसरे स्पोर्ट्स में बच्चों को डालना चाह रहे हैं तो रिस्क भी बहुत है, बट अगर आपने रिस्क ले लिया एंड द बच्चा इज़ रियली टैलेंटेड एंड कैन डू इट, तो वो रिस्क कब एक चैम्पियन बन जाएगा यू नेवर नो। बट आई कैन ओनली से आप बेस्ट फैसिलिटीज़ तो बना रहे हैं, बट अगर आप उस 30 मिनट्स को मे बी 2 hours as for start at least and get good coaches, good trainers, good physios, ताकि at least they understand कि बैडमिंटन क्या है। बैडमिंटन इज़ नॉट ओनली अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, या बॉक्सिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट रिंग में आप ग्लव्स पहन के थोड़ा बहुत हो, इट्स अबाउट ट्रेनिंग करके कैसे आपको कुछ बनना है, जैसे आप पढ़ाई में कुछ बनना चाहते हो। तो बस यही बोल सकती हूँ कि हाँ बनाइए और बनाइए, बच्चों को और नॉलेजफुल होने दीजिए कि स्पोर्ट्स क्या है, लेकिन उनको उस पीटी पीरियड में ये भी सिखाइए, ये भी दिखाइए कि हमारे चैम्पियंस कौन थे कंट्री से, नॉट ओनली इन क्रिकेट बट ऑल द स्पोर्ट्स। दे शुड नो द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, तभी जाके कोई प्लेयर को समझ में आएगा कि मुझे ये स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है, मुझे बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, मुझे जिमनास्ट बनना है। नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही रह जाएगा, लेकिन कुछ होगा नहीं उसका। इट विल जस्ट बी एज कि हमारे पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। या आई जस्ट फील दैट। या थैंक्स। So I believe rounding it up, the secret ingredient is just us. So yeah, you've won over 24 international titles, but also faced some career-threatening injuries. So there are a lot of founders here sitting who might face some failures, pivots in their lives. What would you advise them about how to bounce back, how to be more resilient? What is your strategy for the same? I think अगर मैं अपने स्पोर्ट्स के बारे में बोलूँ पहले तो इफ़ यू गेटिंग इंजरीज, सम इंजरीज आर लाइक यू आर एक्चुअली आपने अपना नी तोड़ लिया है और उसको रिपेयर होने में 1 साल लग जाएगा। एंड 1 साल का वो ट्रॉमा ऑफ नॉट प्लेइंग टूर्नामेंट्स, ऑफ नॉट कमिंग बैक ऑन द कोर्ट, ऑफ जस्ट बीइंग एट होम वॉचिंग टीवी, वॉचिंग अदर्स प्ले, एंड यू आर एक्चुअली केपेबल ऑफ विनिंग टूर्नामेंट्स एंड यू सिटिंग देयर जस्ट थिंकिंग अबाउट मेरा नी तो टूट गया है, अब मैं जिम जाके भी क्या करूँ जब मुझे 1 साल लगेगा। बट आपकी जो टीम होती है ना, समटाइम्स ऑब्वियसली यू विल फील डाउन, यू विल फील वेरी वेरी सैड कि इंजरी मुझे ही क्यों होनी थी, दूसरों को तो नहीं हो रही है। बट होगा, सब प्लेयर्स के साथ इंजरीज तो ज़रूर होगा। एक भी प्लेयर नहीं होगा ऐसा वर्ल्ड में जिसका निगल्स नहीं है, सबको होगा। फॉर एग्जाम्पल कैरोलिना मारिन हु इज़ रियली अ गुड प्लेयर, उसको 3 ACLs हो गए, अब 3rd वाला भी शी इज़ फाइटिंग एंड कमिंग बैक। वाई? बिकॉज शी लव्स द स्पोर्ट, शी वॉन्ट्स टू विन अगेन। वो फाइटिंग स्पिरिट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आई नो इट्स समटाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट कैरोलिना बिकॉज शी वॉज इन top 5, शी वॉज फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1, बट आप अगर top 100 में भी हैं, अगर आपने अपने आप से फाइट आउट नहीं किया, चैलेंज नहीं किया, अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं है तो हाउ विल यू बी द बेस्ट? विदाउट चैलेंज तो लाइफ ईजी हो गया ना, मुझे सब कुछ मिल गया तो
what is this? It's not the way I wanted it. I wanted to be like a proper drama होना चाहिए, fight होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप actually में, if you see my match, Commonwealth Games का जो final Delhi का match था, oh my God, now when I look back and think about that match, I feel so proud that it was just like a cricket stadium. Stadium was full, everyone was cheering for you, and you played your heart out. And इतना दोनों were playing such long rallies. We enjoyed the pressure. Pressure enjoy करना ही चाहिए when you're playing at that highest level. You can't say pressure है, मैं नहीं खेल सकती, मुझे डर लग रहा है. वो भी enjoy करना चाहिए. तो injury भी part of the sport ही है. आपको अपने कितने भी आप फेल हो जाएं लाइफ में, बट फाइनली आपने कुछ माइंड में सोचा होगा ना मुझे क्या करना है. When I was 9 years old, when I used to go to a stadium with Papa on scooter, 25 kilometers आते जाते थे हम लोग, तो मुझे बस ये लगता था काश एक गाड़ी हो, काश एक घर हो, उसके लिए मैं मेहनत करती हूँ. It was all काश काश हो, बट एक दिन वो हो गया ना पूरा, because I was thinking about it, I wanted it to happen. एंड उसके लिए मैंने मेहनत करी. आई डिडंट नो कि वो कल मिल जाएगा मुझे, ये 10 साल के बाद या 20 साल के बाद मिलेगा. बट अगर मैं वहीं पे सोची कि अगर मेरे को चोट लग गई और मैं आज बैठ जाऊँ, तो व्हाट इज दिस? व्हेन एवरीवन इज फाइटिंग, व्हेन पापा वेंट टू ऑफिस फॉर 40 years 9 to 5 जॉब किया है उन्होंने, उनको फीवर आया, कोल्ड आया, डीडी से मुझे नहीं जाना है, तो हु एम आई एम ऑल्सो, दिस इज माई जॉब, this is the thing I love the most. I don't even want to watch TV or anything if I don't do my thing properly. Yes, you will have a lot of sleepless nights. आप रोगे, आप अपने पेरेंट्स को, कोचेस को एक्सप्रेस करोगे. It's fine, it's natural, human nature है वो. आप हंसोगे तो रोगे भी, but get it out. But how much time will you just sit and think about कि मेरे साथ गलत हो गया है? गलत हो गया यार, हो गया, अब तो हो गया. But just go to the gym, try and come back. Maybe there is a solution. Maybe after 1 year you don't know, you might just win the tournament again. But इसके लिए मैं छोड़ नहीं सकती हूँ आज के, चलो अब तो everyone is thinking कि नी तो चला गया है, and स्पोर्ट्स करियर छोटा होता है, मे बी अब कब कम बैक करोगे, अब how will she come back to top 10 again. But I went to एक बार मेरा रैंकिंग 16 पे गिर गया था, एंड आई हैड सम इश्यूज, आई वाज नॉट रियली प्लेइंग वेल फॉर फ्यू मंथ्स, लेकिन देन आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1, राइट. आई फॉट ओवर इट. आई ट्राई टू थिंक दैट कि सब होता है, क्योंकि होता है स्पोर्ट्स पर्सन को, होता है नॉर्मल लाइफ में. आई हैव सीन सो मेनी किड्स गोइंग टू स्कूल एवरी डे, एंड सो मेनी आर गेटिंग 99% एंड सो मेनी आर गेटिंग 60. वाई? वो भी तो उसी क्लास में बैठे हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं. तो इट्स जस्ट दैट कि आप ये मत सोचो कि आपको कभी गिव अप करना है. क्या पता आप बाद में किसी क्लास में वो 67% वाला कुछ बड़ा कर रहे हैं 99 वाले % वाले से. तो मेहनत वो अगेन दिस इज़ अबाउट हार्ड वर्क. अगर नहीं है लाइफ में तो कभी भी गिव अप करना तो इतना ईजी है दैट आई कैन गिव इट अप टुडे एंड से कि मुझसे होगा नहीं, कल मैं बैठ के टीवी देखूंगी, बट कुछ नहीं होने वाला, टीवी देखती रहूंगी मैं. बट अगर मैंने उसको फाइट आउट कर दिया, and if I come over it and then see myself winning again the Malaysia Open tournament, see myself winning again one more World Championship medal, seeing myself winning again one more Asian Games medal, then what is bigger than that? इतना special लगा मुझे कि I overcame that injury which was really really bad, and my parents were seeing me in sad state and they were like, चलो हम तो जिम जा रहे हैं, do you want to come and join us? And when I see people who are 50-60 years old, they want to go to gym and motivate me, then I should also just go and give them some support, right? तो ऐसे आपके साथ लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें. बट येस, काफ़ी टाइम वो नहीं होते हैं, तो आपको अपने आप से बात करना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट करना होता है. बट अगर आप अपने आप से हार गए, देन आई डोंट थिंक आपकी मम्मी पापा कोई भी हो, nothing will work. It's only you who can actually push yourself. It's only you who can come out of that difficult state and think that yes, I am the best, and then you never know कल क्या हो जाए. Very validly said. Give up करना बहुत easy है. So a message to every startup founder: when you are short of runway, startup में अगर next round of fundraising नहीं होता है तो you say मेरा runway खत्म हो गया, मैं बंद कर दूंगा startup. There are good ways to pivot. I have seen lot of founders. I have taken inspiration from them. That how they increase the runway in a way, how they pivot, how they look for more collaboration and customers rather than just the next round of funding. So coming to the startup funding side, I have seen a recent news where you have been a strategic investor in a startup called Nariko. And you have also been a brand ambassador. So
my two questions. What do you look at when someone approaches you for any sort of such deals? And although I know that you are being very selective in those kind of deals, still, what is the best way to approach you if any startup founder wants to send you some pitch or send you some way of collaborating with Saina Nehwal? देखिए स्पोर्ट्स पर्सन तो बहुत डफर होते हैं. वी ओनली हैव नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स, और कुछ जैसा ऐसा है नहीं कि हाई लेवल रॉकेट There are साइंस. lot of sports tech startups now coming up. हाँ, वो इसलिए मैं बता रही हूँ. नारिका कंपनी के साथ मैंने ज्वाइन किया. इट्स अ सैनिटरी पैड कंपनी, क्योंकि मुझे लगा कि गर्ल्स को रिक्वायर्ड है. इट्स अ वेरी unique concept which she met me in she's from Bangalore but she met me. Shruti है उनका नाम, जो डायरेक्टर हैं. She came to Hyderabad and she was explaining to me कि how difficult it is for women at that point of time, जब आपको periods होते हैं, you need to, and imagine a sports person when you're sweating out so much, training for so many hours, you have to keep changing, you have to be ready with lot of things. But जो उन्होंने मुझे वो अंडरवेयर दिखाया जैसा है with the sanitary pad, and it's so comfortable that you don't have to change it again and again. You can do lot of long sessions with that. I personally felt that it is very good for sports person. तो अगर हमारे लिए ही इतना अच्छा है तो नॉर्मल लड़कियों को कितना कंफर्टेबल होगा, बिकॉज वी आर स्वेटिंग लाइक हेल. वी आर स्वेटिंग क्रेजीली फॉर 10 to 12 hours, एंड उसके बाद आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, विच इज़ आफ्टर वॉश. इट्स वेरी वेरी गुड. तो वो आइडिया से आई वॉज लाइक वाओ. मैंने पहले कभी सुना नहीं था इस बारे में. आई गॉट रियली इम्प्रेस्ड बाई इट के कितनी लड़कियों को कितनी चीज़ ईजी हो जाएंगी. दे विल नॉट हैव इन देयर माइंड कि अभी मुझे बारी बारी वॉशरूम जाना है, बारी बारी चेंज करना है. इट्स वेरी वेरी गुड, आई थिंक दैट वे. सो इसलिए मैंने उनके साथ so any plans to have a sort of, जैसे विराट कोहली की फैमिली ऑफिस होगी, या वी हैव सीन लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन forming a VC fund. So any plans to in that nature, or any way you want to get into mentorship for few startups? मेंटरशिप में तो हूँ मैं, बैडमिंटन के साथ ही हूँ. आई एम विद बैडमिंटन प्रोस. उनके ऑलमोस्ट 150 सेंटर्स हैं. सो आई एम लाइक अ मेंटर दैट वे, क्योंकि बैडमिंटन इज़ माई फाइनली इज़ व्हाट आई डू. तो उनकी मेंटर में हूँ, और उनके साथ मैंने आई हैव जॉइंड विद देम. बट आई हैव ऑल्सो invested in a brand called a clothing brand called Kaira, and have couple of restaurants in Hyderabad. So I have invested in them. Startups, yes, only the one which I told you about, Narika, is something which I really liked, and I was like, लड़कियों के लिए तो मुझे ये करना ही चाहिए. But I think और ऐसे अच्छे offers मुझे आएंगे if I will want to learn about it. I will want to see कि exactly क्या है. Then why not, you know, when you are so impressed about something, तो आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे. जब विराट कर रहे हैं, सरीना कर रही हैं, बड़े बड़े एथलीट्स कर रहे हैं, then why not, you know, अच्छा फूड कंपनी हो जो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट्स के साथ हो, why not, you know, all these are always welcome. You know, स्पोर्ट्स में तो कितने सारी चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड है. आपके शूज़ हो गए, आपके रैकेट्स हो गए, या कुछ भी हो गया. So कहाँ पे रीच आउट करें? लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे? यू हैव सम मैनेजर? हमारे मैनेजर हैं इधर. धर्मिष्ठा कहाँ गई? वो शी इज हियर. Okay, so we have seen you destroy the opponent in a badminton court under 30 minutes. तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बैठे हो और फूड ऑर्डर करना? What is more difficult for you? डिफ़िकल्ट इज़ ऑब्वियसली प्लेइंग, क्योंकि आपका जो हार्ट बीट है, आपका जो नर्वसनेस है, वो अलग लेवल पे ही है. उसमें क्या है, वो खाने में तो कुछ भी ऑर्डर करो. तो आई एम नॉट सो मच चूजी अबाउट कि मुझे वही चाहिए. जो किसी ने भी ऑर्डर कर दिया, आई विल हैव दैट. बट माइंड सेट, एज ए सेड ना, जब आप कुछ किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो 24/7 आपके माइंड में वही प्ले करता है. तो इट इज़ नॉट अबाउट कि मम्मी ने ये ऑर्डर किया था, देन यू इवन फॉरगेट कि उन्होंने ऑर्डर क्या किया होगा. जो मुझे मनपसंद है, आई लव आलू पराठा, क्योंकि मैं हिसार से हूँ तो मुझे बहुत पसंद है. तो वो एक चीज़ पे फोकस जाता है मेरा. और उसके बाद जैसे पालक पनीर हो गया, या ये सब चीज़ों पे मेरा इमीडिएटली फोकस जाएगा. बट बाकी कुछ ऑर्डर करना है तो कुछ भी कर लीजिए. दैट्स नॉट सच अ बिग डील फॉर मी. बट येस, माइंड इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कोर्ट पे क्या करना है, कोर्ट पे जाने से पहले कैसा होगा, मैच कैसा होगा. तो इवन इफ आई डिफीट अपोनेंट्स अंडर 30 minutes, लेकिन जो स्ट्रेस लेवल और जो इरिटेशन उस टाइम पे होता है, आई थिंक वो और कहीं नहीं होता है. यस. You have few kids also here who are regularly playing badminton.
So one message you give to yourself before each match, maybe 30 minutes before each match, if you give some message to yourself, what would that be? 1 hour पहले आपको बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए whenever you're playing any match or whenever you're going for anything big. You know, you'll have to really cut from everyone. You have to just be yourself, talk to yourself, and what I tell to myself is sometimes when I'm playing the best, I know she's the best, but I'm no less. I have worked very hard. I have given everything in my training. I am not here with any kind of bad niggles. I have given everything in my training from last 2-3 months or 2-3 weeks. I know I am well prepared. जितना opponent ने preparation किया होगा, I have done equal to that. So I try and talk to me in a positive way every time because I have trained very well. I know I can retrieve everything. I will do long rallies, but I will not leave any shuttle. You know, that's why most of the players, you know, जब मैं खेल रही थी तो उस टाइम पे मुझे बोले थे साइना थैनोस की तरह है, you know, छोड़ती भी नहीं है. They used to make fun, and I'm like इतना था क्या वो रैली का irritation, you know. So I used to feel very proud about that कि अगर आपने training अच्छी करी है, the work. I'm not talking about exam results or I'm not talking about competition results. I'm not even worried about that क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं जीतूंगी या हारूंगी. ओलंपिक्स एक बार आता है 4 साल में, तो आपके पास एक ही टेक है. ये बॉलीवुड की तरह आपके पास 100 टेक्स तो होने नहीं वाले हैं. तो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि आप ट्रेनिंग कैसे करते हैं. अगर आपने ट्रेनिंग 100% करी है तो कोई भी आपके सामने हो, चाहे वर्ल्ड नंबर 1 हो, चाहे आप कितने बार भी उससे हार जाएं, लेकिन आपको ये बिलीव है कि मैंने ट्रेनिंग अच्छी करी है और मैं इस बार अच्छा रिजल्ट दूंगा. हाँ, कभी हो जाते हैं कि आपसे बेटर प्लेयर होते हैं, आपसे बेटर प्लेयर जिनके पास अच्छे स्ट्रोक्स हों, अच्छी स्पीड हो, होते हैं. लेकिन अगर आपके पास इक्वली अच्छे कोचेस हैं जो ट्रेनिंग ऐसा करवाते हैं कि आप उनको भी हरा सकें, तो आप उनको भी हराएंगे. बट फाइनली एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ट्रेनिंग. अगर आप उधर 50-50 करके गए हैं, तो मैंने तो कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं है कि वो बच्चे ने ट्रेनिंग 50-50 करी है, दिल से नहीं करी है और उसको रिजल्ट आया हो. आई हैव नेवर सीन लाइक दैट. तो आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि जब भी टूर्नामेंट जाती हूँ मैं, आई गो विद फुल ट्रेनिंग, आई गो वेल प्रिपेयर्ड. बिफोर द मैच आई एम टॉकिंग टू माई कोच लिटिल बिट फॉर इनपुट्स कि वो प्लेयर कहाँ ज़्यादा खेलेगी और कहाँ मुझे खेलना चाहिए. एंड देन जस्ट थिंक अबाउट द मैच कि कैसे होने वाला है. यू नो, समटाइम्स व्हेन यू थिंक कि मुझे क्रॉस कोर्ट स्मैश मारना है, क्रॉस कोर्ट ड्रॉप डालना है, इफ़ यू विजुअलाइज इट, कभी कभी ना आपको वो नेचुरली गिर जाता है एंड इट विल फॉल ऑन द लाइन और वो आउट भी नहीं जाएगा क्योंकि आपने वो लाइन को भी विजुअलाइज कर लिया है, आपने वो एग्जैक्ट कोर्ट का लेंथ भी नाप लिया है, तो वो गिरता ही लाइन पे. और जब आप सोच रहे कि ठीक है मैं खेल लूँगा, गप्पे मार रहे हैं मैच से पहले, 10 लोग आपके साथ करें, वैसे तो कभी कोई चैंपियन नहीं बन सकता या जीत नहीं सकता बिकॉज योर माइंड इज एवरीवेयर. यू आर स्ट्रेस्ड, दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग टू एवरीवन. यू आर स्ट्रेस्ड, एन्जॉय दैट स्ट्रेस. यू आर इन प्रेशर, एन्जॉय दैट प्रेशर. बट एट द सेम टाइम टॉक टू योर सेल्फ कि मुझे मैच में क्या करना है, कहाँ मेरा अपोनेंट मुझे ऐसा स्ट्रोक खेलता है कि मेरे से मिस्टेक हो जाती है. सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप थिंकिंग, टॉकिंग टू योर सेल्फ. बी विद द पीपल हु विल टॉक टू यू पॉजिटिवली. नेवर गो टू समवन हु विल से कि यार वो तो टफ है, क्योंकि टफ लगेगा फिर इमीडिएटली माइंड में चलेगा कि टफ है टफ है टफ है. बट इफ़ यू गो टू पीपल हु विल से कि पॉजिटिव है, इट इज़ पॉसिबल टू बीट दैट जो आपके सामने जो अपोनेंट है, तो तब आपको लगता भी है येस इट्स गोइंग टू हैपन एंड यू आर then mentally healthy to play the match. Yeah. मैंने सुना है आप ऐसे बोलते हो, मार दूंगी मैं तो. वो एटीट्यूड ही हेल्प किया एक्चुअली, यू नो. दैट ओनली हेल्प मी टू बी सो, टू नॉट थिंक अबाउट मैं किसके साथ खेल रही हूँ. दैट एटीट्यूड आज तक भी जो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, दैट एटीट्यूड ऑफ साइना डिडंट केयर अबाउट हु इज इन फ्रंट ऑफ हर इज वर्कड वेरी वेल. क्योंकि काफ़ी बार क्या पता ट्रेनिंग तो वो लेवल पे हो, बट यू आर रेस्पेक्टिंग योर अपोनेंट्स टू मच. वो रेस्पेक्ट करो. They are anyways big, they are playing well, they have won so many titles, but वो respect कोर्ट के बाहर है. When you are on the court, कोई भी चलेगा, मुझे हराना है, चाहे वो मेंस का वर्ल्ड नंबर 1 क्यों ना हो और चाहे वो मुझे 5 पॉइंट क्यों ना दे, मैं 5 पॉइंट लेके रहूँगी उसके साथ. क्योंकि आई नो इट्स नॉट ईजी टू बीट मेल प्लेयर, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड गेट 5 पॉइंट्स, क्योंकि क्या पता वो 5 पॉइंट्स मुझे लड़कियों के साथ जिता दे टूर्नामेंट. यू नो, सो यू हैव टू जस्ट प्ले विद दैट एटीट्यूड कि जो भी है देख लेंगे. इट्स I am no less. I have trained hard for that and I am ready for any challenge. Yeah, so you started playing badminton because at a point it was your mother's dream. So at which point did it stop being only her dream and it then became your dream?
there must be a turning point in your game, your life, when it was your sole purpose, sole thing to do. So it's little funny here. Initially लगता था क्या होगा because game was not very popular then in 99 when I started. It was not very popular. उतना कुछ मीडिया में भी नहीं आता था and I used to be like ठीक है टाइम पास के लिए खेल रही हूँ then I'll go to school and come back. But I didn't know one day I'll play school tournament. तो मैं school tournament जीतने लग गई और जीत के मुझे 500 रुपये या कुछ ऐसा मैं पॉपुलर होने लगी अपने स्कूल में कि साइना इज़ विनिंग स्कूल टूर्नामेंट्स और वो 500 रुपये ला के पापा को दे देना या एक दो मेरा ऑटोग्राफ ले रहे थे छोटे बच्चे मुझे अच्छा लगने लगा ये चीज़ें एंड देन आई एम लाइक यार ये क्या है एंड देन आई वेंट टू डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने वो जीता स्टेट लेवल मैंने वो जीता एंड आई बिकेम इवन मोर पॉपुलर इन स्कूल मुझे घमंड उस बात का होने लगा कि स्कूल में पॉपुलर हो रही हूँ मेरे टीचर्स मुझे पसंद कर रहे हैं अभी तक दिमाग में ये भी नहीं था कि कुछ प्रोफेशनल भी होता है इट वॉज ऑल अबाउट स्कूल में पॉपुलर हो रही हूँ स्कूल के बच्चे मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं दे वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद मी अरे वाह अच्छा लग रहा है बट स्लोली यू नो व्हेन आई थॉट कि जब मैं 10-11 ईयर्स की थी आई स्टार्टेड विनिंग अंडर 13 सिंगल्स एंड डबल्स आई स्टार्टेड विनिंग अंडर 16 सिंगल्स एंड डबल्स 19 सिंगल्स एंड डबल्स सीनियर्स में भी सिंगल्स एंड डबल्स इतना जल्दी मेरे गेम में इम्प्रूवमेंट आया ना दैट येस इनिशियली 1-2 ईयर्स आई हैव स्ट्रगल्ड लिटिल बिट क्या बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं नींद में रैकेट भूल जाती थी मेरे शूज़ भूल जाती थी काफ़ी चीज़ें काफ़ी डांट खाने को मिली है मुझे काफ़ी गुस्सा आता था कि क्यों मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं क्यों मुझे पुश कर रहे हैं या क्यों मेरे कोचेज़ मुझे पुश कर रहे हैं लेकिन आई डिडंट नो दैट इट विल जस्ट टर्न दिस वे कि मैं टूर्नामेंट जीतने लग गया आई एम लाइकिंग दैट नाउ आई एम लाइकिंग दैट फीलिंग ऑफ मुझे नेक्स्ट डे ट्रेनिंग करना है जो चीज़ आपको पसंद नहीं है ना अगर आई थिंक जब आप छोटे होते हो उस टाइम पे आप इतना सोचते नहीं हो उस बारे में बट अगर आपको कोई मशीन की तरह काम करवाते रहेगा ना देन स्लोली वो आपके अंदर आ जाएगा और एक दिन अगर आपको वो अगर माँ हो या पापा हो कोई नहीं बोले कि आज क्यों नहीं बोल रहे मुझे जाने के लिए वो आपके अंदर भी आने लगेगा आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों हुआ क्योंकि द यंगर यू स्टार्ट दिस देन यू स्टार्ट फीलिंग कि आज तो मुझे डांट नहीं मिली यार शायद अच्छा ही खेल लिया होगा एंड कोच इज़ ऑल्सो प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव डन वेल तो इनिशियली जब आप छोटे हैं आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट वंस यू आर 13, 14, 15 कि आपको कोई इतना चेंज कर सके दैट्स वाई व्हेन यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर यू हैव टू स्टार्ट अर्ली यू हैव टू स्टार्ट एट द एज ऑफ 5, 6, 7 जब आपको कुछ नहीं पता आपको सब कुछ बनना है लाइफ में यू वांट टू बी एवरीथिंग इन द लाइफ सो उस टाइम पे अगर आपके पेरेंट्स और कोचेज आपको पुश भी करते हैं एवरी डे वही चीज़ करवाते रहते एक दिन आपको खुद ही लगता है कि ये क्यों नहीं बोल रहे हैं या क्यों नहीं हो रहा है एंड आई एम लाइकिंग इट सो मच नाउ दैट माई नेम इज़ कमिंग इन द न्यूज़ पेपर एंड आई एम गेटिंग थोड़ा बहुत जो फेमस हो रहा है अच्छा लगता है ना किसी को भी अच्छा लगेगा एंड एट द एज ऑफ 12 मतलब 2-3 साल खेलने के बाद ही मैं इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट हो गई तो उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक देन आई जस्ट गॉट सो अट्रैक्टेड टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल तो मुझे भी बहुत मज़ा आने लगा ट्रैवलिंग में एंड स्टार्टेड टू सी दोज हाईएस्ट लेवल चाइनीज़ प्लेयर्स कैसे ट्रेनिंग करते हैं कैसे वो बेस्ट बन गए और सीखना है सो दैट इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग एंड देन प्लेइंग देयर एंड गोइंग आउट एंड ट्रेनिंग तो वो सब में मुझे मज़ा आने लगा बट हाँ इनिशियली ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी आई कैन रिलेट टू एनी यंगर किड फीलिंग दैट मम्मी डांट मार रही है पापा पुश कर रहे हैं मम्मी बादाम तेल का दूध पिला रही है अंडा खिला रही है या कुछ ऑल दीज थिंग्स वो वेरी वेरी टफ टू डाइजेस्ट बट जब मुझे लगा कि शायद दिस इज़ एक्चुअली आई एम एन्जॉइंग दिस स्टैंडिंग ऑन द पोडियम कमिंग बैक विद दैट गोल्ड मेडल जो है मुझे मज़ा आने लगा उस चीज़ के लिए एंड स्लोली देन मे बी बाई 12-13 आई वॉज क्वाइट मेच्योर्ड इनफ कि मुझे ये चीज़ करनी ही है इसके बिना मुझे खुशी नहीं मिलेगी जी इट वॉज द टेस्ट ऑफ विनिंग आई गेस डेफिनेट ओके हमारे ऑडियंस ने आपसे अभी बहुत सारी चीज़ें सीखी नाउ वील हैव अ स्मॉल रैपिड फायर सो लेट्स सी इफ यू स्मैश इट और पास इट या ओके योर गिल्टी प्लेजर वीडियो गेम आइसक्रीम या स्लीप आइसक्रीम इज नंबर 1 देन स्लीप Your favorite movie? DDLJ Shahrukh Khan is my favorite actor I think yesterday also Shah Rukh Khan owned this place because Neha Dhupia said the same thing. Yeah, I think he's someone everyone loves, Shah Rukh Khan. And one more, who's your favorite opponent? फेवरेट कोई नहीं है खतरनाक आई कैन टेल यू ओ माय गॉड एक खतरनाक अपोनेंट है आई वांट टू प्लेयर बट आई हेट टू प्लेयर वैंग यीहैन है उनका नाम चाइना से इतनी खतरनाक प्लेयर है सच ब्यूटीफुल गेम शी हैज़
मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए तो नहीं क्योंकि आप उसी फील्ड में हैं, लेकिन इतना सुंदर गेम है उनका, वो मुझे काफ़ी बार हराया उन्होंने, लेकिन जब मैंने उनको हराना सीख लिया तो काफ़ी बार मैंने भी हराया. बट शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग प्लेयर and challenging player and actually first time I'm praising, she was one of the best players in the world. Yeah. Favorite stadium? इंडोनेशिया में आई हैव वन सो मेनी टाइटल्स इन इंडोनेशिया. तो जकार्ता का जो स्टेडियम है इज आई थिंक आई कैन से मेरा लकी स्टेडियम भी रहा है. आई गॉट आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 टाइटल्स ओवर देयर. सो या इंडोनेशिया. You can have some questions from the audience. Jai Hind, ma'am. Yeah. Here. Yes. This is Krishna Tiwari here, and I want to ask a question as a student. That if two students are there and both have the same like जुनून, एक ही चीज़ पाने का सेम जुनून है. इनफैक्ट दोनों फ्रेंड्स हैं और सेम जुनून एक ही चीज़ पाना है और एक को मिलती है एक को नहीं. तो जिसको नहीं मिल रही है उसको अपने आप को कैसे मोटिवेट करना चाहिए आगे के लिए? फ्रेंड्स भी है आप लोग. सिचुएशन दे दिया. सिचुएशन टफ है. बट ये आप स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स और स्टडीज़. फ्रेंड भी है. देखिए स्पोर्ट्स में फ्रेंड बनाना मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता है आपको उससे बेटर करना है. आप हाई बाय तो बोल लेंगे बट ऑब्वियसली वो अपना ट्रेनिंग नहीं बताएगा, मैं भी अपना नहीं बताऊंगी. स्टडीज़ में क्या हो जाएगा, अगर आपको उससे बेटर होना है, देयर इज़ ओनली वन थिंग विच आई थिंक इज़ देयर इन एवरीथिंग. आपको उससे ज़्यादा पढ़ाई या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अब वो अलग बात है कि आपके दिमाग में कुछ आए ना. इतना पढ़ने के बाद भी आई हैव सीन many sports person also that they have trained very hard और उन्होंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं और वो उतना अचीव नहीं कर पाए हैं. लेकिन आपको करना है फ्रेंडशिप ना टूटे. तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, जब भी आपके पास अपने घर जाते हैं, आप पढ़ाई होने के बाद अपने आप में रहते हैं, 3-4 आवर्स इतना मेहनत कर लीजिए. चाहे उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प चाहिए, अपने ट्यूशन टीचर की हेल्प चाहिए, या कोई ऐसा स्मार्ट बंदा हो जो कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, उसके पास जाके उस चीज़ को बारी बारी सीखो. क्योंकि सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप पढ़ाई कर तो रहे हैं, आप सब जान रहे हैं, आपके दिमाग में सब कुछ है, बट उसको और कैसे ईजी तरीके से सीखना है, देन आई थिंक यू शुड गो टू समवन हु इज़ बेटर देन यू. तो हमारे लिए ऑब्वियसली कोच है, तो शायद आप टीचर के पास जाके सीख सकते हैं. कोच हमें ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के देते हैं जिससे मैं उस एरिया को इम्प्रूव कर रही हूँ, मेरे ड्रॉप शॉट इम्प्रूव कर रही हूँ, मेरे स्मैश इम्प्रूव कर रही हूँ. बट पढ़ाई में आई थिंक आपको अपने फ्रेंड को ना बताते हुए, बिकॉज इट्स अ सीक्रेट, फाइनली यू वांट टू अचीव राइट. अगर आप उनको ही बता दोगे कि हमें ओलंपिक मेडल साथ में गोल्ड जीतना है, वो तो होने नहीं वाला. एक ही गोल्ड मेडल जीत सकता है. एंड यू हैव टू कीप दैट करियर थिंग, दैट थिंग विच यू वांट टू अचीव, अपने आप में रख के कैसे आप उसको अपने टीचर से या आपसे जो बेटर है उनसे बात करके, अपनी फ्रेंड से ही बात कर लिया करो. कभी कभी वो बता दे क्या पता, अच्छा यू नो मे बी शी इज़ बेटर देन यू एंड यू कैन हैव सम इनपुट्स फ्रॉम हर. बट स्पोर्ट्स में ऐसा कभी होता नहीं है. यू नो स्पोर्ट्स में इट्स वेरी टफ टू डिस्कस बिकॉज यू डोंट नो, शी माइट बी गुड एट टॉसिंग और मेरे पास उतना अच्छा रिस्ट नहीं है. आई एम गुड एट रनिंग, सो यू नेवर नो मुझे किस चीज़ में इम्प्रूव करना है, उसे किस चीज़ में इम्प्रूव करना है. बट पढ़ाई तो एक ही हुई ना, फाइनली एग्ज़ाम में लिखना तो एक ही चीज़ है सबको. तो उसमें मैं यही बोल सकती हूँ, आप उस चीज़ को और ईजी तरीके से सीखना चाहते हैं तो गो टू समवन हु इज़ एक्चुअली वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, हु कैन एक्चुअली टीच यू इन ए वेरी गुड वे, ताकि आप जो भी आंसर्स लिख रहे हैं वो और ईजी तरीके से और आसानी से कर सके. तो चैलेंज तो नहीं, वरना दोस्ती टूट ही जाएगी फिर तो. और क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम, यू जस्ट सेड दैट एवरीवन डू मिस्टेक्स, एंड मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने भी कोई ऐसी मिस्टेक की जो आप चाहते हो कि हम ना करें, एंड दैट यू रिग्रेट इट एंड नॉट वांट एनीवन ऑफ अस टू डू दैट? आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 11th स्टैंडर्ड में. मैं गई भी नहीं 11th 12th, तो वो तो ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. वो आपको ये बोलूँगी, मेहनत करो, मेहनत कभी नहीं छोड़ना है.
मेहनत की वजह से ही पापा साइंटिस्ट होके उन्होंने मुझे अलाउ किया कि तू गेम पे ध्यान दे, वरना मैं अभी 11th-12th करती रहती। मुझे स्पोर्ट्स में अच्छा करना था, मुझे इंडिया की नंबर 1 प्लेयर बनना था, सुपर सीरीज चैम्पियन बनना था, वर्ल्ड नंबर 1 बनना था, ओलंपिक मेडल लाना था, वॉज माई एम। अब आपका क्या एम है 11th स्टैंडर्ड में? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आई वॉज प्लेइंग एट द हाइस्ट लेवल इंटरनेशनली अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 8 एंड वर्ल्ड नंबर 10 एंड आई वॉज डिफीटिंग देम। तो आपका 11th और 12th में अभी क्या है माइंड में, मुझे नहीं पता। आपको आप साइंस में है कि मैथ्स में है? आपको बनना क्या है? अभी 11th में क्या बैडमिंटन प्लेयर बताओ आप? मैं बोल रहा हूँ आप मैथ्स कर रहे हैं, मेक श्योर आप जो भी बनना चाहें इसके बाद जी जान लगा दीजिए, और अपनी फ्यूचर में जो आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि आप क्या बने बेसिकली, उनका सपना पूरा करने की हिम्मत रखिए। टाइम पास भी करो क्योंकि आप अभी यंग हैं, टाइम पास भी करो, लेकिन एवरीथिंग कीप इट लिमिटेड। फ़ोन बहुत टाइम ले लेता है, देखो फ़ोन से कुछ नहीं होने वाला, आप टाइम पास कर सकते हो, बट इफ़ यू कीप इट फॉर 3-4 आवर्स नो, देन यू आर लूजिंग योर टाइम टू अचीव समथिंग। कि आपने अगर कुछ अचीव कर लिया यंग एज में, आई विल टेल यू द प्लस पॉइंट्स। व्हेन यू हैव एवरीथिंग ना, यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड, यू कैन मेक योर पेरेंट्स ट्रैवल द वर्ल्ड, आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन हैव द बेस्ट कार, यू कैन हैव द बेस्ट हाउस, मतलब कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर आपके पास सब कुछ है। अगर आपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया इस टाइम पे और डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान दिया, आई नो इट विल हैपन, इट इज़ बाउंड टू हैपन, बट आप सब चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, कितना टाइम देते हैं, किस चीज़ का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड में और किस चीज़ का वैल्यू कम होना चाहिए, ये आप खुद अपने आप को बताएंगे या आपके पेरेंट्स बताएंगे, ये आपको मतलब आपके ऊपर है। बिकॉज आई कैन नॉट टेल एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, आई कैन ओनली से किल योर सेल्फ, वर्क हार्ड फॉर 12 आवर्स, डोंट गो आउट फॉर मूवीज, डोंट ईट एनीथिंग बैड, बट कैन यू डू इट? संडेज को भी आपको मूवी नहीं जाना है, चुपचाप घर में बैठ के पढ़ाई करनी है, रात रात पढ़ाई करनी है। सो इट इज़ टफ, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो हाई लेवल का है बात और बहुत टफ है, बट मैं आपको यही बोल सकती हूँ, गिव योर सेल्फ टाइम, पढ़ाई के लिए अच्छा टाइम दो, फ़ोन के लिए 1 घंटा दे दो, क्या क्या बोलना है, फ्रेंड्स को हाय बाय बोलना है और क्या करना है, बट अदरवाइज आपका करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ यू हैव टू डू इट ऑल योर लाइफ। सो मेक श्योर पहले आप अपना करियर बनाएं और बाकी सब चीज़ें तो होती रहती हैं, यू नो, जस्ट मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। बैडमिंटन प्लेयर अभी 11th में थोड़ा टफ हो जाएगा, आप टाइम पास के लिए खेलिए, एन्जॉय कीजिए, कोई भी स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, कीप योर सेल्फ फिट, अच्छा खाना खाओ, खाना खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर इसकी वजह से आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, वरना आप कुछ भी खाओगे आपको लेज़ी फील होगा, आपको टायर्ड फील होगा, जितना बर्गर्स पिज़्ज़ा ये सब खाएंगे उतना टायर्ड फील होगा, और जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना हेल्दी फील होगा और उतने ही आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बेटर होगा। सो आई कैन जस्ट से ईट वेल, प्ले गुड स्पोर्ट फ़ोन में नहीं, बाहर जाके खेलो तो अच्छा रहेगा बॉडी के लिए, एंड गिव लिमिटेड टाइम टू फ़ोन एंड मोर टाइम टू योर करियर। थैंक यू मैम। So hi ma'am, my name is Parsha and I am also a badminton player, and I have noticed in a recent tournament I lost because I fumbled some points as I was in a lot of pressure during that match, and it was a qualifying last round. So can you help me in some tips for young badminton players to manage pressure? Manage pressure on the court, probably that During is what he's tournament, asking. right? Yes. उससे कुछ नहीं होने वाला प्रेशर से, यू हैव टू ट्रेन वेल। आप जितना अच्छा ट्रेनिंग करेंगे, यू हैव वर्क वेरी हार्ड एंड आपको अपना आप पे कॉन्फिडेंस है, आप कुछ छोड़ोगे नहीं, हर एक जगह पे प्रेजेंट हो आप। इमेजिन आप 60-70 रैली का एक रैली कर पा रहे हैं स्ट्रोक्स का, अगर आप वैसे पूरा मैच कर लेंगे तो प्रेशर कहाँ पे आएगा आपको? प्रेशर क्यों आता है? बेसिकली व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, व्हेन यू आर नॉट रेडी दैट कि मैं प्लेयर के वो डिफ़िकल्ट शॉट्स ले लूँगा या उतना रैली कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इफ़ यू हैव ट्रेन्ड वेल नो, यू विल नॉट बी वरीड अबाउट द प्रेशर सिचुएशंस एनी मोर, क्योंकि अभी आप कितना अंडर 10 अंडर 12 खेल रहे होंगे, अंडर 15 खेल रहे हैं, तो आप अगर बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है माइंड में तो मेडिटेशन करते हैं फिर आप? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा करो उसको। अभी आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैच कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का मैच होता है ना?
15-20 मिनट्स में हो जाता है, 15 के 3 सेट। मैच? हाँ बैडमिंटन मैच? हाँ, यस, बैडमिंटन मैच। 15-20 मिनट्स में तो अच्छा, कौन से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है? GB स्टेट। स्टेट लेवल 15 मिनट्स में? मैक्सिमम थर्ड सेट गया तो 30-35 मिनट्स, उतने में हो जाता है। नहीं, मैच शुड गो फॉर 1 तो हो जाएगा, ठीक है। 30 मिनट्स के लिए तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन करो, ठीक है। मेडिटेशन और कितने देर के लिए करते हो? 5-10 मिनट? 5-10 मिनट बस। मेक इट 30 मिनट्स इक्वल टू योर प्लेइंग टाइम। अगर आपको प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो मेक इट इक्वल टू योर प्लेइंग टाइम। और जब भी आप टूर्नामेंट में जाओ, ट्रेन हार्ड, क्योंकि उसके अलावा देखो फिजिकल स्पोर्ट में देयर इज़ नथिंग यू कैन डू मच। आपको वहाँ पे कुछ पढ़ाई करनी नहीं है, हार्डवर्क करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ऐसा बनना है कि अपोनेंट को टफ लगे कि जहाँ भी मारे आप हो वहाँ पे और वो पॉइंट नहीं ले पा रहा है। और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। इस ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें प्रेशर है, टेंशन है। फाइनली आपको बस अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि अपोनेंट को ईजिली पॉइंट्स नहीं देना है। हार जीत आपके हाथ में नहीं है। माइंड तो कंट्रोल कर सकते हो, माइंड यू कैन कंट्रोल बाय डूइंग लॉट ऑफ मेडिटेशन, लॉट ऑफ फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड इम्प्रूविंग योर स्ट्रोक्स एंड टॉकिंग टू योर कोचेस कि आपके मिस्टेक्स क्या है, वही आपको बहुत बेटर कर देंगे। लेकिन ट्राई एंड प्ले, अगर 15-20 मिनट का मैच है ना, तो ट्राई एंड ट्रेन एटलीस्ट फॉर 5 आवर्स, क्योंकि 15-20 मिनट्स कुछ नहीं लगेगा फिर आपको। और अगर आपका मैच 1 घंटा जा रहा है तो फिर 10 घंटा ट्रेनिंग करो। तो वही है बस। फाइनली इट्स अबाउट हाउ मच यू आर पुशिंग ऑन कोर्ट। आई डोंट थिंक अबाउट प्रेशर मच, थिंक अबाउट कैसे ट्रेनिंग करूँ, हाउ मच आई हैव टू इम्प्रूव, रिजल्ट्स आएगा ही आएगा। थैंक यू मैम। We'll have just one last question now. First of all, अच्छा ठीक है। yeah, thank you. It's a complete pleasure to speak to you in person. So, and I want to congratulate you for the glory you bring to the country. Also, I have 2 questions, and both are in parts. Very first, what is one very important life lesson that sports has taught you, and in your real life or in business, or there are so many founders and coaches here. So, what is one very important life lesson that sports has taught you? Discipline is something which we get over the years of playing. Lot of never give up attitude. Like you have to, कितने बार भी गलती हो जाए, but I am always ready to try. मतलब 100 बार भी हो जाए ना मुझसे, I will not say I won't do it again. I will do it again. क्या पता हो जाए. But I've seen many people crack at that point. कि वो सोचते हैं अब मुझसे हो ही नहीं रहा है. And that line is actually मुझे बोलने में बहुत easy लग रहा है, but it's not easy. You have to keep trying. Discipline होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने every day उसको try नहीं किया, और आजकल काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने इतनी मेहनत कर ली, हम थक गए, ये वो, थक गए तो फिर थक ही जाओगे आप। Then there is no way you can perform. अगर आप थकने के टाइम पे भी पुश कर गए, then imagine it's so easy for you to be in any situation. मतलब आप इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी निकल के आए हो कि आपको सब चीज़ बहुत नॉर्मल लगेगी। You will not be worried about आज मैं थकी हुई हूँ, आज मैंने इतने घंटे ये किया वो किया, सब कुछ ईजी लगेगा लाइफ में। दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन को क्रॉस करना है। सो आई कैन ओनली से स्पोर्ट्स टीचेज यू दैट कि आपको आज फीवर है, कोल्ड है, यू नॉट फीलिंग वेल, यू फॉट विद योर पेरेंट्स, यू फॉट विद एनीवन, बट यू आर देयर गिविंग योर 100% ऑन कोर्ट ट्रेनिंग। अच्छा ट्रेनिंग नहीं किया तो कोच पीछे से बोलेगा गेट आउट ऑफ द सेशन, गेट आउट ऑफ द सेशन, यू आर नॉट ट्रेनिंग टुडे बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी विद द ट्रेनिंग। हाउ मेनी एवर सिचुएशंस आर हैपनिंग इन योर माइंड। स्कूल में आप फेल हो गए, पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, वहाँ पे अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, देन that is another level of tension. तो स्पोर्ट्स टीचेज यू दैट कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, टेंशन में हो, प्रेशर में हो, आपको हमेशा कूल रिलैक्स्ड रखेगा, डिसिप्लिन रखेगा, एंड यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन विद ईज। इट्स नॉट, यू विल नॉट टेक इंस्टेंट डिसीजंस या जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करेंगे, आप हमेशा सोच समझ के ही करेंगे।
Right. And one alarming question also, I'm into coaching and एक पेरेंट ने मुझे बोला कि यार करिश्मा मेरा जो बेटा है आई डोंट नो द शायद 9-10 साल का है, 11 साल का है, एंड उसको सॉकर बहुत पसंद है, उसको फुटबॉल बहुत पसंद है, तो वो दिन में 8 घंटे ट्रेनिंग करना चाहता है. तो अगर मैं उसको ट्रेनिंग में डाल दूँगी तो वो रियल लाइफ में जो ये बिज़नेस और इम्पॉर्टेंट बिजनेस फैमिली से आते हैं तो ये सब ज़रूरी ये कब करेगा. एंड उसका ड्रीम है कि उसको मेसी जैसा खेलना है और वैसा बिजनेस बनना है. फैमिली से हो. हाँ. तो फिर तो the point of mentioning that the point of mentioning this question was that young people like young child do dream a lot, but आप उसको मर्सिडीज में भेजोगे तो नहीं होने वाला है. आई एम सेइंग इट इज वेरी टफ. आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप. मेसी बनना है या रोनाल्डो बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कंट्री में फुटबॉल इतना पॉपुलर नहीं है, एंड यू नीड अ टीम फॉर दैट. उसको ट्रेनिंग करनी है. आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स. आई एम सो प्राउड दैट ही वांट्स टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन. अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग स्पोर्ट, क्योंकि हमको पूरी टीम चाहिए. पूरी टीम चाहिए. और अगर वो बनना भी चाहता है फ्यूचर में, ही वांट्स टू बिकम लाइक सुनील छेत्री एंड ऑल, देन उसे काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे. अगर उसको इंडियन फुटबॉल टीम में भी आना है, लेकिन उसके लिए भी टीम चाहिए, बिकॉज यू हैव टू हैव टीम टू बिकम समवन लाइक हिम. So my question was simply that there are a lot of young people, young children who dream big, not just about soccer, or it's even if about participating in cricket or let's say badminton or anything, but conventionally when parents do not give sports that much importance and do not give that environment also, because life में अगर पैसा कमाना है या grow करना है तो there are other ways also. So a lot of young dreams get killed when things like this or insecurity like this of parents intervene the childhoods, any person's childhood. So what is one message for parents that you can give that sports को कितने लेवल पे और कहाँ अपने बच्चों की लाइफ में प्रमोट कर सके? That's my question. आप मैरिड है? No, I am a mindset coach and I'm single. Single. आजकल के जो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स हैं वो दोनों काम करते हैं. इट्स वेरी टफ, वेरी टफ टू मेक चैम्पियन विदाउट वन पेरेंट बीइंग मैड विद द किड. वेदर इट इज़ फादर और वेदर इट इज़ मदर, अब उन दोनों का झगड़ा वो देख लें. अब मेरे को ये बताना है कि दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, दोनों कमाते हैं. इट इज़ वेरी गुड. द कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग लाइक एनीथिंग एंड दे वांट, बोथ द पेरेंट्स वांट टू डू समथिंग इन लाइफ एंड दे आर बिजी. और बच्चा भी अपना धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, क्योंकि इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास. फ़ोन पे है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, टू अर्न लॉट ऑफ थिंग्स. पैसा तो कमा लेंगे हम लोग. मैं आपको स्पोर्ट्स के बारे में बोलना चाहूँगी तो स्पोर्ट्स पर्सन हमारा बनना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है. आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है. कोचेस कितना देख लेंगे आपको? एक कोच को 50-100 बच्चों को देखना है, बट एक्स्ट्रा अलर्ट, एक्स्ट्रा टफनेस, एक्स्ट्रा एवरीथिंग कौन करवाएगा? वो एक पेरेंट ही करवाएगा. मैं ये ही बोल सकती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल के बच्चे थोड़े सॉफ्ट भी हैं. इफ़ समवन स्कोल्ड्स ऑल्सो, आई फील कि कभी कभी मुझे कोचेस को देख के भी डर लगता है कि 2-3 कुछ बोल क्या दिया तो पेरेंट्स बोलेंगे डांट क्यों मारा है. आई एम लिटिल स्केयर्ड टू टेल एनीथिंग अबाउट दिस जनरेशन, क्योंकि थोड़ा फील हो जाते हैं जल्दी. आजकल के 10-11 साल के बच्चे जाके खुद को रूम में बंद कर लेते हैं, जो हम कर भी नहीं सकते थे. वो आके मम्मी थप्पड़ मारती थी उस टाइम पे, ये क्या है. लेकिन इट्स टोटली चेंजिंग. आई कैन सेंस दैट कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर आ रहा है वो कल्चर. तो स्पोर्ट्स पर्सन जैसे मेरे साथ हुआ, या मैंने जो प्लेयर्स को देखा मेरे साथ, जो भी बड़े प्लेयर्स बने हैं, वेदर वो सिंधु है, श्रीकांत है, प्रणॉय है, या कोई भी जो अच्छे प्लेयर्स बने हैं, सबके साथ एक पेरेंट ज़रूर था जो फुल टाइम था. और या तो एक ऐसा कोच रहे जो आपके साथ फुल टाइम रहे आपको, लेकिन वैसा तो मिलना मुश्किल है कोच. आप भी तो कितने बच्चों को देख रहे होंगे. It's very difficult to handle one kid, right? When you have so many kids. So let's take a last question from the kid here. Yeah. Who is sprouting from quite a long time. This is the last question. And last question. Hi, my name is Prehan Gandhi, and I'm a Lego creator. So my question is, what's one memory in your journey? What creator are you? Lego. अच्छा, Lego.
what's one memory in your journey that you feel defined you not just as an athlete but as a person? No, repeat once more. Repeat once more. Looking back on your journey, what's one memory that defined you not that you feel defined not that I am also confused. कोई अच्छी तरह से बता सकता है What तो is one memory that defines you not just as a sports person but also as a human being? One memory other than badminton. कुछ किया ही नहीं लाइफ में मतलब 25 years of playing started at the age of 9 I played till 34 कभी छुट्टी नहीं कुछ नहीं मतलब एक इंसान है बोल के भूल जाते हैं फिर हम लोग फाइटर्स जैसे हो जाते हैं टू जस्ट थिंक अबाउट प्लेइंग डूइंग वेल एज ए ह्यूमन बीइंग स्पोर्ट्स ने सिखाया बहुत है टू बी वेरी वेरी डाउन टू अर्थ वेरी डिसिप्लिन हैव राइट फूड बी गुड टू एवरीवन बट कभी टाइम आई लव वॉचिंग कपिल शर्मा शो बॉलीवुड मूवीज़ बट और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिला यार जैसे कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं बचपन में खेलना स्टार्ट कर दिया था अब मैं क्या बताऊँ कि कैसे समझाऊँ क्या मेमोरीज भी उसी की है मेमोरीज भी बच्चे मतलब आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग फ्रॉम द एज ऑफ 9 जब 8 साल की थी तो आई डिड कराटे फॉर 1 year आई हैव ब्राउन बेल्ट इन कराटे उससे पहले जो था 5-6 साल थे वो सब मैंने ग्राउंड में ही फ्रॉग रेस रनिंग रेस पढ़ाई फिर उसके बाद जाके पेरेंट्स को देखना आई हैव ऑलवेज बीन on ground I have always been playing I didn't have many friends बचपन में भी I used to be on my own ज़्यादा तो ऐसा कुछ मैंने हटके किया नहीं जिससे मुझे याद रहे कि कुछ किया हो ऐसा बट हाँ ओलंपिक मेडल was my mom's dream which I tried to do it and I got it so that one thing will always be with me that I am Olympic medalist. Sangana, you have put India on global map by winning so many medals and across the globe and so has 21 by 72 because the startup committee has put India and Surat on global map by taking it forward to UAE as well last year. So how do you feel coming here in 21 by 72 after visiting and doing so many amazing tournaments across the globe? How do you feel coming to Surat and what do you feel about the whole event and everything? I'm so proud. I'm so proud that you are reaching the world. You're doing so well. And it cannot, all hats off to you, sir. Congratulations, because it's not easy without hard work. I'm sure how much you must have worked hard. कोई भी फील्ड में बेस्ट होना या वर्ल्ड लेवल पे पहुंचना इज़ नॉट ईजी आई एम श्योर यू नो दैट मैं यहाँ पे यही बोल पाऊँगी कि मैंने भी इतनी मेहनत करी है आप भी घंटों घंटों करते होंगे घर भी नहीं जा पाते होंगे खाना भी मुश्किल से खा पाते होंगे सो दैट इज़ हाउ यू रीच दी वर्ल्ड लेवल इज जस्ट नॉट लाइक कि आप बैठ के कंप्यूटर पे और हो गया इतना काम करना पड़ता होगा आपको सो हैट्स ऑफ टू योर team and you're doing so well and I'm so proud to be here as an athlete to have done so well for the country and मुझे जब पोडियम पे वो मेडल के साथ खड़े होके जो फीलिंग आती है ना आई एम श्योर आपको वही फीलिंग आ रही होगी अभी ये सब करके और इतनी ऊंचाई पे पहुंच के सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर कमिंग So today being Father's Day and साइना जी के पापा यहाँ है I would like to welcome him on the stage please. I would also like to request Miss Rekha Shah, Vivan and Diya to kindly come up on stage and felicitate Saina, who is accompanied by her father, Mr. Harveer Singh Nehwal ji. Can I request Rekha ji to kindly come up on stage? The kids have made something special for you, Saina. No, like the
Padma Bhushan and world number 1. Can I please request the rest of the team of 21 by 72, Mr. Rajat Podar, Mr. Sharad, Mr. Mehul is already on stage, and Prateek, can we have you all on stage, please, for this lovely photo op? Thank you so much, Saina. Thank you so much for such an interactive